A very good morning to all the students. As you all know that day before yesterday we have started a chapter from a Moments book, that was chapter number 5, The Happy Prince, and we have covered half part of it. So today we are going to cover rest of it and we are going to complete the chapter today. Alright, so I think we have studied till here that the crow the swallow, that was the tiny bird, उसने क्या किया? He took that sapphire from the happy prince eyes and he gave it to the young man who was the playwright. And then playwright was very happy. Okay, so now from here we are going to start. I have come to bid you goodbye, he cried. Now who is saying this? The bird is saying this, that, and to whom is he saying this? He is saying this to Happy Prince. वो Happy Prince को bird ने बोला that I have come to bid you goodbye. मतलब आज that was the final day that he was staying there. उसने बोला कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको goodbye बोलने आया हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? मतलब see, if you remember, इससे एक दिन पहले भी प्रिंस ने यही कहा था कि please stay with me one night more. Again, this was the third day when he was saying to that bird कि please stay with me one night more. So now what is the reply of the bird? It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. So now the bird said that क्योंकि यहाँ काफ़ी winter season है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है and कुछ टाइम में snowfall होने वाली है, and Egypt ये लोग क्यों जा रहे थे? Because the weather over there right now was very nice. वहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप थी, अच्छा मौसम था स्पेशली फॉर बर्ड्स. तो वो बर्ड ने बताया कि वहाँ क्रोकोडाइल्स इनफैक्ट जैसे धूप आती है, धूप में आके दे ले डाउन लेजीली, मतलब उनको इट हैपेंस जब आपको स्पेशली विंटर सीजन में आपको जब धूप मिलती है तो यू फील वेरी लेजी एंड यू डोंट वांट टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस. सो सेम थिंग ही वाज सेइंग हियर, द बर्ड. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. So now, first thing was the poor lady. Second thing, the young playwright. अब third thing जो happy prince ने देखी, that there was a little girl जिसके पास जो एक मैच गर्ल थी. मैच गर्ल मतलब वो मैच स्टिक्स बेचती थी. अब उसके जो मैच बॉक्स थे वो ना गटर में गिर गए थे. गटर आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ. और वो सारे ख़राब हो गए. तो ऑब्वियसली अगर जो मैच स्टिक्स हैं, इफ़ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, दे आर स्पॉइल्ड, दे आर ऑफ नो यूज. देन हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग. तो नाउ शी वॉज अवेयर कि अगर मैं घर बिना पैसे कमाए गई, माई फादर इज़ गोइंग टू बीट मी. एंड अब क्योंकि मैच स्टिक्स सारी ख़राब हो चुकी हैं, स्पॉइल हो गई हैं, सो देर इज़ नो स्कोप ऑफ अर्निंग मनी. सो थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स, the little girl was crying. She has no shoes or stockings and her little head is bare. No shoes मतलब उसके पास कोई जूते नहीं थे पहनने के लिए, and stockings that is a kind of socks. और उसका सर bare था. bare मतलब उसने सर में भी कुछ नहीं पहना था. and as you all know कि इनके यहाँ winter season चल रहा था, and winter season में you cover your body from top to bottom. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. See again the happy prince, उन्होंने क्या देखा कि that girl was crying, उनसे ये देखा नहीं गया. तो उन्होंने बर्ड को क्या कहा कि I have only just one sapphire left, मेरा दूसरी आँख से भी वो sapphire ले जाओ and give it to that girl, ताकि उसके father उसको मारे ना. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. So again the bird agreed to stay for one night more, and he said कि I'm going to stay but I'm not going to pluck out your one eye. मतलब आपकी एक आँख नहीं निकालूंगा. क्यों? क्योंकि if I'm going to do so, you're going to become blind. आप अंधे हो जाएंगे, आप देखेंगे कैसे. Swallow, swallow, little swallow, said the prince.
डू एज आई कमांड यू, मतलब कि जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा करूँ. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विथ इट. डार्टेड मतलब अपने आप को वहाँ से वो ले गए, मतलब चले गया वहाँ से वो दूसरी आई लेके, सफायर लेके. ही swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. So now what happened? He went to that girl and उसके palm में, palm मतलब जो आपका हाथ होता है उसमें उसने रख दिया sapphire. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. तो अब उसको उतना ज़्यादा नहीं पता था little girl को कि what sapphire is. So now when she saw it, she was happy and she ran to home ताकि वो अपने घर वालों को दिखा पाए. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I'll stay with you always. Here again, अगर आप इस bird को देख इसके बारे में हमने पढ़ा है that the bird's nature also was very nice and she had a very caring and loving nature because उसने जितने बार भी हैप्पी प्रिंस ने he requested her to stay with him, तो bird ने agree किया that yes I'm going to stay with you. And at last जब उनकी आंखें नहीं थी, उनकी आंखों से एमराल्ड सफायर निकाल दिया गया था, तो बर्ड सेड दैट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गो अवे, मैं आपको छोड़ के अब नहीं जाऊंगा. क्यों? क्योंकि नाउ यू आर ब्लाइंड. आई एम गोइंग टू स्टे विथ यू ऑलवेज. नो लिटिल स्वॉलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. मतलब नाउ हैप्पी प्रिंस वाज रिक्वेस्टिंग हिम टू गो बैक. नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वॉलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. After convincing the happy prince a lot, happy prince agreed that उन्होंने वो मान गए थे कि ठीक है, if the swallow want to be with him forever, वो मान गए थे. तो अब next day से क्या होता था, हैप्पी प्रिंस में एज इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर, वो जो बर्ड है वो हैप्पी प्रिंस के शोल्डर में बैठ के वो सारी चीज़ें बताती थी कि सिटी में क्या हो रहा है. बिकॉज नाउ द हैप्पी प्रिंस वॉज ब्लाइंड, ही वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग. तो कन्वेयर कौन थी? बर्ड. ही यूज्ड टू टेल एवरीथिंग टू द हैप्पी प्रिंस. डियर लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. अब वो क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, हमें मार्वलस लगती है, पर जो मिजरी होती है, मिजरी मतलब सैडनेस. अगर आपकी सिटी में लोग खुशी नहीं है तो उससे ज़्यादा आपको खुशी कभी मिल ही नहीं सकती है. मतलब अगर सारे लोग सैड हैं तो हाउ कैन द प्रिंस बी हैप्पी. सो नाउ व्हाट डिड ही से टू द बर्ड कि प्लीज़ फ्लाई अवे एंड जाके देखो कि और मुझे बताओ कि यहाँ सिटी में हो क्या रहा है. इफ़ देयर इज़ समवन जिसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, आई वॉन्ट टू नो. So the swallow flew over this great city and saw the rich making merry in the beautiful houses. मतलब जो बर्ड था वो when he was flying, तो उसने क्या देखा कि जो रिच मैन हैं वो काफ़ी अपने घर में ना मेकिंग मेरी मतलब हैप्पीनेस, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपने घर में बिकॉज रिच पीपल हैव एवरीथिंग. वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, मतलब जो बेगर्स थे, जो लोग पुअर लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो ऐसे रिच लोगों के गेट में बैठे हुए थे. वाई? टू बेग समथिंग. He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. अब वो एक डार्क लेन में गया. डार्क लेन क्यों? क्योंकि जो पुअर लोग होते हैं दे कैन नॉट अफोर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल और इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस, तो उनकी जो लेन होती है, उनकी जो गली रहती है, वो अंधेरे वाली गली थी, डार्क था वहाँ. एंड उसने क्या देखा कि कुछ बच्चे अगर आपने सुना होगा कि जो लोग अच्छे से खाना खाते हैं तो उनके चेहरे में ना थोड़ा ग्लो आता है, उनका चेहरा रेडिश या पिंकिश हो जाता है. ठीक है, तो उससे पता चलता है कि यस दिस पर्सन इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फूड. बट वेर एज इफ अ पर्सन हु इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, तो उनका मुंह ना बहुत वाइट हो जाता है, मतलब उनके मुंह में बिल्कुल भी रस नहीं होता, उनके मुंह में बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता. तो यू कैन, आप लोगों के फेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो स्पेशली पुअर पीपल रहते हैं. एंड वहाँ उन्होंने क्या देखा, वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन. स्टार्विंग मतलब जिनको भूख लगी
भूखे बच्चों के वाइट फेस देखे और वो क्या कर रहे थे, वो ब्लैक स्ट्रीट्स में लिस्टलेसली देख रहे थे। लिस्टलेसली मतलब उनके पास कोई लिस्ट ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल जो हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं या फिर जो पीपल हु आर रिच, वी हैव थिंग्स ऑन आर काउंटिंग दैट टुडे वी आर गोइंग टू ईट दिस, वी आर गोइंग टू ईट दैट। तो हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट होती है दैट टुमारो वी आर गोइंग टू ईट दिस, टुमारो वी आर गोइंग टू गो हियर, राइट। बट जो पुअर पीपल हैं दे डोंट हैव एनीथिंग, तो उनके पास लिस्ट ही नहीं है। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. तो अब उसने क्या देखा, एक ब्रिज के नीचे there were two boys, वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी उस एरिया में and इनके पास प्रॉपर clothes नहीं थे to cover themselves. So what they were doing to protect themselves from this winter's cold, वो एक दूसरे को ना हग कर रहे थे ज़ोर से ताकि वो एक दूसरे को वार्म कर सके. सो यू कैन नाउ फील कि हाउ पुअर पीपल गो थ्रू, यहाँ कितनी मुश्किल से वो गुजर रहे थे, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, दे डोंट हैव clothes to cover their body from winter. So this was the only thing that they could do to save themselves. How hungry we are, they said. मतलब वो कह रहे थे कि हम बहुत भूखे हैं. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. तो जैसे एक वॉचमैन ने देखा कि वो एक ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे विंटर से, तो एक वॉचमैन ने देखा एंड उन पे चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ मत बैठो, जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर. तो उनके पास कुछ और थिंग नहीं था, दे डोंट हैड एनी ऑप्शन, तो उनको वहाँ से निकलना पड़ा और बारिश में उनको भीगना पड़ा, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी शेल्टर. Then he flew back and told the prince what he had seen. मतलब वो वापस प्रिंस के पास गया और उसने वो सारी चीज़ें बताई जो उसने देखी थी. I'm covered with fine gold, said the prince. If you remember, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि that the happy prince body was covered with gold leaves. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. मतलब कि उनके जो बॉडी में काफ़ी सारी छोटे छोटे पीसेस थे गोल्ड के, तो उसने क्या बोला कि मेरी बॉडी से हर एक पीस गोल्ड का निकालते रहो और पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, सो दैट दे कैन लिव हैप्पीली. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी बिकॉज दे कैन सेल द गोल्ड एंड अर्न देयर लिविंग. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. मतलब एक एक करके सारी लीफ निकाल के वो जो सिटी में जो नीडी पीपल थे उनको बर्ड ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया वो सारे लीव्स, ताकि वो हैप्पीली रह पाए. मतलब उनको जो सारी कमी है विच दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर नीड्स, देयर बेसिक नीड्स स्पेशली, तो वो अपने बेसिक नीड्स को पूरी कर पाए. एंड द चिल्ड्रंस फेस ग्रू रोजियर. रोजियर मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप जब अच्छे से खाना खाएंगे तो आपका चेहरे में थोड़ा ग्लो आएगा, रेडिश या पिंकिश होगा. तो अब बच्चों का फेस जो पहले वाइट हो चुका था अब रोजियर हो गया था, बिकॉज एंड दे लाव्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, क्योंकि दे वर हैप्पी. स्पेशली आप जब हैप्पी रहेंगे तो ऑब्वियसली आप काफ़ी ज़्यादा आपका फेस शो करेगा कि येस यू आर हैप्पी. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. मतलब उनके पास अब खाने के लिए था, तो दे वर हैप्पी, वो खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जो पुअर पीपल थे. Then the snow came. जैसे विंटर्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, बट अब वहाँ स्नोफॉल हो रही थी. एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट मतलब जब बर्फ एकदम जम जाती है उसे कहते हैं फ्रॉस्ट. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. मतलब इतना ज़्यादा वहाँ स्नो हो गया था, इतना ज़्यादा फ्रॉस्टिंग हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि स्ट्रीट ना सिल्वर से बनी हुई है. Everybody went about in furs and the little boy wore scarlet caps and skated on the ice. See this furs and scarlet, I hope आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब, क्योंकि हमने ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड में, जहाँ हमने पढ़ा था कि विंटर के सीजन में वहाँ भी बच्चे फर्स वाले क्लोथ पहनते थे एंड वो जो लेडी थी वो स्कारलेट कैप पहनती थी. स्कारलेट कैप मतलब रेड कलर की कैप. द पोअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही
would not leave the prince. He loved him too well. मतलब सी क्योंकि जो ये बर्ड्स थे सारे वो इजिप्ट क्यों जा रहे थे? बिकॉज टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम दिस कोल्ड. तो इसलिए क्योंकि वहाँ मौसम काफ़ी अच्छा था. बट स्वॉलो ने क्या ठान ली थी कि नो मैटर हाउ मच द स्नोफॉल होती है यहाँ, आई एम गोइंग टू स्टे विद द प्रिंस बिकॉज ही लव्ड हिम. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. तो उसने क्या किया? क्रम्स मतलब जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसने बेकर्स की डोर से वो उठाए और अपने विंग्स में ना उसको लगाता था ताकि उसको थोड़ी गर्मी लगे उससे. दिस वॉज द वे टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम विंटर्स. बट सी स्टिल वो वहाँ से गया नहीं बिकॉज उसको हैप्पी प्रिंस को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था कि हैप्पी प्रिंस किस तरीके से लोगों की मदद करते थे. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब उसको पता था लास्ट मोमेंट में कि अब वो मरने वाला है द बर्ड, क्योंकि अब he did not have that much of stamina to fight with the winter. तो उसके पास उड़ने की भी इतनी शक्ति नहीं थी. But however he went to the happy prince's shoulder and he sat there. Goodbye dear prince, he murmured. मतलब उसने धीरे से बोला goodbye prince. Will you let me kiss your hand? Now when this swallow is about to die, he says to the happy prince that can I. अब वो जब वो मरने वाला था तो उसने हैप्पी प्रिंस से बोला कि हैप्पी प्रिंस कैन आई किस योर हैंड. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू. तो उसने क्या, उसको हैप्पी प्रिंस को अब ये नहीं पता था कि ही इज गोइंग टू डाई. इनफैक्ट उनको लग रहा था कि अब शायद एट लास्ट ये मान गया है कि इजिप्ट जाने वाला है. तो उसने कहा कि ठीक है, नाउ यू कैन किस मी. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. तो अब वो बताता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, अब I am going to the house of death, मतलब मैं वहाँ मरने वाला हूँ. At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart has snapped right into two. मतलब जब उसने ऐसा बोला तो उनको कुछ आवाज़ आई स्टैचू के अंदर से, और स्टैचू के अंदर से क्या आवाज़ आई? वो प्रिंस का दिल था, लेट का जो दिल था वो टूट गया था. इट ब्रोक इनटू टू पीसेस बिकॉज व्हेन ही केम टू नो दैट दिस बर्ड इज गोइंग टू डाई. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked upon the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. If you remember, हमने फर्स्ट पिक्चर भी देखी थी हैप्पी प्रिंस की, when he was covered with gold, sapphire and that स्टोन, रूबी स्टोन, तो वो कितने अच्छे लग रहे थे. बट अब उनकी जो पूरी बॉडी थी, पहले उन्होंने सीमेंट समथिंग से बनाई थी, उसके ऊपर गोल्ड लगाया था, बट अब गोल्ड तो था नहीं, तो दैट स्टैचू वॉज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉड एंड हिज गोल्डन नो लॉन्ग एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर. मेयर मतलब वहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी के जो लोग थे, तो उन्होंने क्या कहा कि इसके पास रूबी भी नहीं है, सफायर भी नहीं है, एंड इसकी बॉडी में जो गोल्ड था वो भी नहीं है. इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर. तो उन्होंने कहा कि ये ना थोड़ा बेगर टाइप लग रहा है ये स्टैच्यू. एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर. We must really issue a proclamation that birds are not allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ एक बर्ड भी, there was a dead bird. Now who was this dead bird? The little swallow. तो इन्होंने क्या बोला कि हम एक ऑर्डर निकालेंगे कि no bird is allowed to die in any of the statues. So they pulled down the statue of the happy prince. उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू वहाँ से हटा दिया क्योंकि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था अब. और उस स्टैचू को इन्होंने क्या किया, फर्नेस में, मतलब जो फायर, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा मेटल था, तो उस फायर प्लेस में रखा, उसको जलाया, मेल्ट किया ताकि वो छोटे छोटे टुकड़े में अलग हो जाए. द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टैचू विच वॉज ब्रोकन इंटू टू पीसेज वॉज नॉट मेल्टिंग इन द फर्नेस. तो मतलब जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट था वो ना मेल्ट नहीं हो रहा था फायर में.
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जहाँ सारे कचरा फेंका हुआ था उन्होंने वो हार्ट को वहाँ फेंक दिया, और उसी हार्ट के बगल में क्या था, उसी हार्ट के बगल में उन्होंने उस बर्ड को फेंका था, द लिटिल स्वॉलो को फेंका था। Bring me the two precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the laden heart and the dead bird. तो ऊपर जब अब ये after they died, तो heaven में जब गॉड ने कहा अपने एंजल से कि मेरे को कोई दो लोग, बहुत अच्छे दो लोग ले आओ, दो मोस्ट प्रेशियस थिंग्स, जो इस सिटी के दो कोई भी प्रेशियस थिंग को ले आओ। तो एंजल क्या लेके आए, वो लेके आए एक प्रिंस का हार्ट और जो डेड बर्ड थी वो। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me। तो उसने कहा कि गॉड ने कहा कि तुम बहुत सही चीज़ लेके आए हो, अब मेरे ये जो पैराडाइज है, जो हेवन है, मैं चाहता हूँ कि ये बर्ड यहाँ हमेशा गाना गाए और जो ये हैप्पी प्रिंस है ये हमेशा मुझे प्रेज करें। सी इससे पता चलता है कि हैप्पी प्रिंस व्हेन ही वाज अलाइव एंड when he was about to die he was very happy, he used to look after all the members of his city, and even after his death he was not able to see all these things। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो पूरी बॉडी थी उससे जो भी गोल्ड था वो सारा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड द बर्ड, इस बर्ड का भी जो मेन कैरेक्टर है उससे ये पता चलता है कि हाउ हेल्पफुल, एंड देयर वाज वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड एज वेल विच वी सीन इन दिस स्टोरी। सो एंड सी, जब आप बहुत अच्छे काम करते हो अपने लाइफ में एंड यू गेट अ पे बैक फॉर इट, पे बैक मतलब आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिलती है। एंड व्हेन दे डाइड दे वेंट टू द हेवन ऑल्सो टुगेदर, एंड अब वो आगे भी हमेशा साथ रहेंगे। सो फ्रॉम दिस स्टोरी वी ऑल्सो गेट अ वेरी ग्रेट मॉरल दैट we in our life we should help needy people, we should not think about something bad about anybody, because at the end we must think कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें बाद में अच्छा मिलेगा, that is karma। So students, I hope this story is clear to you, because this story is really very interesting, and I have divided this story into 3 parts so that it will be easy for you to grasp the story. Now I want all of you to take out your books, read the story once again, and then watch the video, and if you have any doubt then I am always there.